we fall into great tawhud, we fall into shirk, and we don't even realize we're doing it. तो सेक्स रिलेटेड है कि जी आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 2-3 साल लोग मुझे बहुत ऑस्ट्रेसाइज कर रहे थे, अजीब तरीके से मेरे साथ उनका कम्युनिकेशन था कि इसके साथ अब बात कैसे करें. फातिमा यूजुअली मैं जो है ना अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, लेकिन सिंस वी वर ऑलरेडी ऑन दिस तो लेट्स जस्ट कीप मूविंग एंड लोग भी हमारे साथ साथ हमें ज्वाइन करते रहेंगे एंड दे विल बी लिसनिंग टू द डिस्कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. Okay, inshallah, sounds good. ऑलराइट, तो हम जो बात कर रहे थे जो मुस्लिम जो द रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इस्लाम, तो yeah, let's just continue from there at this point. Okay. Well, firstly, I'd like to say thank you for having me. I think this is a very vital conversation that we need to have as an ummah, because we are underestimating the power and the quality of women understanding their role within our deen so they can function on this earth correctly. Unfortunately, we've had a lot of cultural coercion and influence, a lot of weaponizing of Islam, and it has screwed the message up quite a lot. And it's left our women of our ummah very confused. When actually the main women don't realize their own power, basically. That is what I'm trying to get at. So the meaning of a Muslim woman is multifaceted. I think the main issues we have in regards to understanding the power within the family dynamic is what it means to get married and what it means to have children. So essentially, from my learnings and understanding of Islam, women are the qualifiers of people around them. Women are the qualifiers of the men that they can join life with in order to expand this ummah. Unfortunately, culture has turned that the other way around, whereas men just pick the woman that they like the best of the look of. And we've confused what it means to look at somebody's deen, right? So we just say, oh, deen ko dekho, which basically means salah padti hai, hijab pehenti hai, chalo alhamdulillah, wo itni achhi musliman hai. लेकिन दीन का मतलब सिस्टम होता है, अपने बंदे का पूरा सिस्टम देखना है. And Muslim women have forgotten this, that they need to look at the system of the man that they're conjoining their life with and the kind of things that they're looking to flourish in the future, inshallah. आपने बड़ी ज़बरदस्त ये अभी मैं इसी आपकी जो पॉइंट है कि हमने अदर वे राउंड रखा हुआ है कि आदमी चूज़ कर रहा होता है, जबकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो औरतें होती हैं, द वुमेन ऑफ द फैमिली, वही शेप अप करती हैं हस्बैंड को भी, वही शेप अप करती हैं अपनी औलाद को भी. सो दे आर एक्चुअली द क्वालिफायर्स. जो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, मतलब दिस इज एक्चुअली द आई थिंक द राइट वे टू लुक एट इट, बिकॉज ख़वातीन का जो रोल होता है दैट शेप्स अप द होल सोसाइटी प्रीटी मच, और घर से जो स्टार्टिंग होती है. सो तो इसके अंदर जो है ना, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि व्हेन यू स्टार्ट, जब आपने स्टार्ट किया इसकी तरफ आना, दीन की तरफ आना, वो पहले तो थोड़ा हल्का सा क्विक जर्नी मुझे बताएं कि वाज इट लाइक क्या बचपन से यू वर लाइक ऑल इनटू इट, और यू हैड लाइक अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द लाइफ? तो उसको जरा क्विकली मुझे बताइएगा, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन कि वहां से चैलेंजेस, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जब आप इस तरफ आए? Okay, so growing up, I ran away from deen. जो मैंने एग्जाम्पल्स देखे थे अपने फैमिली में, कनेक्टेड फैमिलीज में, मुझे बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी नजर आई थी, एंड इट मेड मी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल. तो एज अ यंग पर्सन मैं बिल्कुल साइंस की तरफ भाग गई कि मुझे फैक्ट्स और फिगर्स दो और मैंने कुछ और नहीं सुनना. लोग बैठते होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही होती थी, और मेरा जवाब ये होता था कि आप लोगों ने कोई साइंस बुक नहीं पढ़ी. तो आई वॉज अ बिग रिजेक्ट ऑफ इस्लाम. मुझे जो एग्जाम्पल्स मेरे पास थे, मैं बिल्कुल it developed no connection for me, made me very uncomfortable. और लाइफ की एक्सपीरियंस
जी। दिस वाज ड्यूरिंग योर टीनेज या उसके बाद की आप बात बता रही हो, किस वक्त का टाइम है ये? Yeah, so this is from pre-teens all the way up to my mid-20s. Yeah. So I spent majority of my life running away from Islam, running away from cultural narratives, क्योंकि मेरी समझ ही थी कि जो कल्चर में हमें कह रहे हैं वो दीनी होगा। तो सबसे बड़ा मैं सोचा मिसकंसेप्शन है। ये होता है इस्लाम, इस तरह लोगों को अप्रेस करते हैं और औरतों को मारते हैं और जो भी उनका दिल करते करके चले जाते हैं। And I was like, no, this can't be right. And लोगों के अखलाक देखना, ये मेरे अंदर ये बहुत बड़ी चीज थी कि लोग कहते थे कि हम मुसलमान हैं और इतने जोश से कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब मैंने उनकी हरकतें देखी, जैसे वो दूसरे लोगों के साथ सलूक रखते थे, it really put me off and it made me rebel and run away from this. It was only when I approached my late 20s, early 30s, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पता नहीं कैसे मुझे चुना है। मेरे सामने उन्होंने फिर हदीसें लेके आए, आया तफसीर, नुमान अली खान, हमजा यूसुफ, शेख हमजा यूसुफ और उमर सुलेमान, they just came to me on my algorithm, and I can only put it down to अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे चुना है कि बेटा ये देखो, ये हकीकत है, यहां आ जाओ, this is the good side. तो I started learning and developing, और फिर मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था लोगों से कि गाइस आपने तो ये कहा था लेकिन हमारे दीन में तो ये कहता है। तो it caused a lot of disruption and friction even in my family, क्योंकि ये क्या आ गई है आलिमा साहिबा, पहले रिजेक्ट करती थी, अब जहाँ सारा कुछ क्वेश्चन कर रही है। नहीं तो फातिमा, यहाँ पे जो आपने जैसे उल्मा की बात की, दीज आर मोर ऑफ वेस्टर्न उल्माज, जैसे नुमान अली खान हैं और उमर सुलेमान हैं और जितने ये सारे मोर टूवर्ड्स लाइक नॉर्थ अमेरिका, मतलब वेस्टर्न यूरोप और सारे। तो इससे पहले क्या यू वर मोर एक्सपोज्ड टू अ सर्टेन क्लास ऑफ उलमास जिस वजह से यू हैड अ डिफरेंट विजन, या मतलब क्या था यहाँ पे? I had no exposure at all whatsoever. जो मुझे सिखाया गया था, it was at home within the family. We had no outside connection to the wider ulama. And when you talk about Western scholars, actually Dr. Israr is in that list as well, to one of the scholars that I was exposed to later on in my life. Lekin, no, there was no connection. And that's one thing I like to discuss on my social media, to push families in the UK and to expand their children's knowledge, expose them to multiple scholars, allow them to learn the different angles, the different fiqhs and why those things are in place. But unfortunately, I think because the parents themselves have a very low level of education in deen, वो अपने बच्चों को expose नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनकी ego का मसला बन जाता है कि बच्चा मुझे सिखाएगा। लेकिन इस्लाम में this is the rite of passage. आपका बच्चा जब टीनेज एज में आ जाता है, उसका रोल ही होता है कि वो अपने माँ बाप को आगे बढ़ाए। So we switch roles, right? We teach our children, we help them become multifaceted individuals that live life. And as soon as they hit 14, 15 years old, उनका काम होता है कि वो हमें बताएं कि नहीं मम डैड ऐसा नहीं है, मैंने ये पढ़ा है और ऐसे हमें करना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को एम्पावर नहीं करना चाहते क्योंकि हम खुद ही इतने इनसिक्योर हैं। And this is more of an ego issue, right? Like लोगों को यानी कि मतलब कल का बच्चा वाली बात है ना, कल का बच्चा हमें सिखाएगा वो वाली चीज है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ, तो ईगो तो जाहिर है दीन के अंदर तकब्बुर करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, आपको पता ही है तो ये दिस कम्स इनटू दैट कैटेगरी। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मतलब हमारे माँ बाप पे अल्लाह ताला रहम करे या सब माँ बाप पे अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मैं हमेशा से एक बड़ा स्ट्रांग मेरा बिलीफ है कि जो आपकी औलाद होती है ना, दैट इज अ 2.0 वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वो आपके आगे का वर्जन होता है। तो एंड आई थिंक दिस इज हाउ नेचुरली थिंग्स शुड मूव के यार जो मेरा बच्चा है वो मेरी जो पूरी लेगेसी है उसको आगे लेके बढ़ाए, मतलब आगे चलेगा उसको लेके, रादर देन के मेरे बिलीव्स के अंदर फंस जाए, वो मजीद आगे एक्सप्लोर करे
और जो मेरी पूरी जो पीढ़ी चली आ रही है वो आगे बढ़े, बजाय इसके कि मेरे स्टेज पे फंस जाए। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हेन यू लाइक यू मेंशन यू स्टार्टेड कमिंग बैक व्हेन यू वर अप्रोचिंग 30s और अराउंड 30s, व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज? I'm pretty sure locally घर के अंदर होगा, but yeah, whatever was it, but what was your biggest challenge when you were trying to explore the real deen? I think it was my own mental and emotional struggle with discovering the truth. I felt extremely let down. मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे सही मैसेज नहीं मिली। इतने साल मैंने गुजार लिए हैं, मैंने रिबेल किया है, मैं सारा कुछ कर लिया, एंड किसी ने मुझे हक की बात नहीं बताई, अपने मतलब की बात बताई है। You're absolutely right, actually. Yeah. It's a बहुत बड़ा एक धोखा फील होता है when you have to unlearn all that you've learned for 30 years. And ये मैंने खुद भी किया है। मैं खुद भी 30 साल की उम्र में जब मैं 30 का था, I had to unlearn everything and then relearn. इसी वजह से मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं अभी 7 साल का बच्चा हूँ। उतनी नॉलेज है मेरे पास खाली जितनी एक 7 साल के बच्चे के पास होती है। या होनी चाहिए। होनी चाहिए apparently, yeah, absolutely. तो फातिमा, आप जो है, अच्छा, तो आई कैन कम्प्लीटली, मतलब मैं आपके साथ इस पर रेजोनेट कर सकता हूँ कि जो धोखे वाली फीलिंग आती है व्हेन यू हैव टू अनलर्न। सो आपने मेंशन किया था कि आप पर्सनल डेवलपमेंट मेंटोर फॉर मुस्लिम वुमेन भी हैं। वो आप वहाँ पे व्हाट डू यू सी देयर, लाइक आप वहाँ पे क्या देख रही हैं और वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं खवातीन के, और आप जस्ट यू कैन टेक द स्टेज। क्या कहती हैं आप वहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन? So, through my own discovery and learning, that was the main motivation for me to start this. क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी experience ये थी, तो definitely there's going to be loads and loads of women that are feeling the same way as me. And the main things I come across is an issue with mindset. हमने culture को अपने दीन के आगे prioritize कर लिया है। और जब हम इस तरह करते हैं, we fall into great ताहूद, we fall into shirk, and we don't even realize we're doing it. तो जब हम इस realm में फंस जाते हैं, तो अल्लाह मियां बरकत वहां से छीन लेते हैं। तो हम फिर फंस जाते हैं इसी साइकिल में कि नहीं मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ये कहा था तो मैं यही करूंगी, और मुझे क्यों इतनी मुश्किलात आ रही हैं, और मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, why is my husband running off and doing a secret second marriage? And they have a lot of issues, and marriage is predominantly one that comes up for me the most, which is why I focus so much on Islamic values for women, so they can understand, because female sensuality, female roles in raising the family, एक औरत घर का पिलर होती है, और हमने उसको बेस फाउंडेशन घर के नीचे जो गंद होता है वहां पे हमने डाल दिया है, and we're like, चलो शुक्र है, as long as the woman is under a certain amount of control by the culture, her husband and her family, she is a good woman. And the redefinition of the word sabr, this is a big factor as well, because ladies are using sabr to accept oppression. और एक मुसलमान होने के नाते हमारा काम नहीं है कि हम oppression को accept करें, हमारा काम है कि हम वहां जाके उस चीज को रोकें. And this power has been taken away from us. So women are suffering at the hands of their own lack of education and cultural coercion. And these are the things that are faced the most. फातिमा, कैन यू एक्सपैंड अ लिटिल बिट मोर? ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया ना, ऑपरेशन, सबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड करो, बिकॉज जो हम देखते हैं अपने कल्चर में कि नहीं जी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फैमिली, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ऑल ऑफ दिस, राइट? कि जी अगर नई शादी होती है तो मतलब ज़ाहिर शुरू में as soon as the honeymoon period ends, उसके बाद लड़ाई झगड़े फड्डे, एक एडजस्टमेंट पीरियड जिसको कहा जाता है वो शुरू हो जाता है, फिर ये होता है। तो वहाँ से लोग जो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होते हैं उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि नहीं भाई तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लाइक यू सेड, इट गोज़ टू फार,
कि भाई अब मतलब जो है अगर पिट भी रहे हैं तो भी बर्दाश्त करना है, जो गालियाँ भी खा रहे हैं वो भी बर्दाश्त। तो उस पे थोड़ा-सा एक्सपैंड करें कि मतलब मतलब ये वेयर इज़ द लाइन? Okay, so in Islam, the definition of sabr is to not disobey Allah subhanahu wa ta'ala while you're going through a difficult time. That's the definition. हमने सबर का लफ्ज लेके ना, क्योंकि सबर हमने ये देखना है कि the definitions of words when it comes to our deen doesn't necessarily directly correlate in the way we use language in the modern world. So we've taken sabr and we've used it as a rope around a woman's neck because essentially she needs to be kept in control to keep the family in one order. Now, मैं ये नहीं कहती कि compromise नहीं करना. Compromise करना पड़ेगा. That's a part of life. You go through an adjustment period, you have certain issues, and you have to understand within your self-reflection as well कि मेरी limit कहाँ है. लेकिन हम क्यों suffer करते हैं with the redefinition of sabr? क्योंकि औरत अपने आप को Islamic education नहीं देती. वो किताबें नहीं पढ़ती. वो तफसीर नहीं पढ़ती. वो सीरा नहीं पढ़ती. उसको ये फाउंडेशनल एजुकेशन पास नहीं है उसके, तो वो क्या करे? उसने डेफिनेशंस अपने फैमिली से ही लेनी है ना, कल्चर से ही लेनी है. सो आई वेरी स्ट्रांगली प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग. और हमारे कल्चर में ये भी प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ स्कॉलर्स दीन को पढ़ सकते हैं, जाके उनसे पूछो. नाउ वी डू नॉट हैव अ रिलायबल उलमा. We do not. I have personally experienced myself, I have to go to 3 or 4 sheikhs minimum and try to find the right advice from them. Once I receive the advice for me or my clients, I then do my own research within Quran and Seerah. Because you cannot go around trusting everybody else's definitions. So women's low self-esteem is leading them to not educate themselves in deen, and then they are being manipulated by these words by society. आपने अभी जो मेंशन किया उलमा का, आप सही कह रहे हैं कि जो है आई थिंक मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि देखें जो एक तो जो जिनकी नियति ख़राब है लोगों की, जो अपनी पैसों के लिए, अपनी फेम के लिए, जिन चीज़ों के लिए, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे उलमा की बात कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है, मेरा उस पर खाली पर्सपेक्टिव ये है कि वो भी इंसान है. आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू व्हाटएवर पुट आउट द डिस्कोर्स, व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू से. मैं ये समझता हूँ कि हम एज अ मुस्लिम, जिस तरह आपने बात की ना कि यू go to 3-4 different sheikhs and then you do your own research, ये I think is very important अगर आपको आखिरत की फिक्र है. अगर if you're like कि यार बस फतवा दे दो मेरे मतलब का, तो फिर तो आप एक के पास जाओ, you're good, right? लेकिन this shows कि यार मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है कि I am legally correct, अल्लाह की बारगाह में legally मैं correct हूँ. इसलिए मैं 4 शेखों के पास भी जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी रिसर्च भी कर रहा हूँ, फिर जिस पे मेरा दिल मुतमईन हो रहा है, that's what I'm gonna do. I बिल्कुल. think that is what लेकिन the approach is. ये आखिरत की डेफिनेशन औरत के लिए है. Let's go into this a little bit more. क्योंकि हमारे कल्चर में कहते हैं कि तुम अपने मियाँ को खुश करो तो जन्नत कमाल होगी. नाउ इसमें सच है, इस्लामिक सच है, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है. हमारे दीन में मियाना रवि का कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग इन द मिडल, एवरीथिंग बैलेंस्ड. हम उसको लेके बिल्कुल हमने स्ट्रेच कर दिया. तो औरत अपने घरों में ये समझ रही है कि मैं इसको सह लूं तो मैं जन्नत कमाऊंगी. जो अल्लाह मियां ने कहा है that what we should put up with and what we shouldn't put up with, if you don't have this education, you see, this is where we're coming in a problem now with women, because their definitions are incorrect and they are moving forward with full confidence कि नहीं मैं बहुत अच्छी औरत हूं क्योंकि मैं oppression सहती हूं. Actually, you are very disappointing Muslimah if you accept oppression. You are letting our ummah down by accepting behavior that our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam told us to not accept. We're taking our definitions from the wrong places, bhai. That's my main argument. अच्छा, तो जब आप इन ख़वातीन से जब आप सेशंस करती हैं, तो
what do you see there? Like, सबसे उनके again, चले मैं इसको इस तरह पुट अप करता हूँ कि ज़्यादातर कॉमन इश्यूज आपको क्या सबसे जो अगर टॉप टू में आपको बोलूं व्हाट वुड बी द टॉप टू कॉमन इश्यूज विद ऑल द मुस्लिम मोस्टली आर दे पाकिस्तानीज इंडियंस सब कॉन्टिनेंट या देर मोर फ्रॉम यूके कौन आपको ज्यादातर कौन होता है They are Desis, South Asians, but they are all over the world. And the second subsect I have is a lot of African women. We clearly share a lot of cultural happenstance because the amount of African women that comment and say it's exactly the same for us is quite astonishing. So the main problems I come across, this is going to be, I will say it directly, the neglect and the abuse of men and women's misunderstanding on how to deal with that. Family would rather support you be abused and die in that marriage than leave and cause disruption to wider society. So the main thing I come across is कि लड़कियों की families उनको फांसी लगा रही हैं. Wow, yeah, it's sad. that is the culture and मैं भी समझता हूँ कि हमारे खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में तो it's nothing to do with Islam or Muslim culture. It's all Indian culture that we have. मैं ये definition correct करना चाहती हूँ कि Islam is a tradition. It's a system. It's a tradition. Culture is something we just gather because we were in a certain area in a certain time. You know, the traditions that the culture, or cultural traditions that human beings create has got absolutely nothing to do with Islamic tradition. And we are crossing over those barriers too much. और हमारी औरतें बहुत सफर कर रही हैं और जब हमारी औरतें सफर करती हैं inadvertently men suffer and the children suffer. अच्छा तो फातिमा नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस तरफ बात करें कि जो खास तौर पे इस वक्त जो टीन्स के अंदर जो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 12 साल की उम्र से लेके 22-23 साल की जो एज है दैट इज वेरी क्रूशल फॉर चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो फॉर बोथ ऑफ देम तो आई वांट यू टू बी मोर टुवर्ड्स के भाई जो बच्चियां हैं वो इस एज में बिकॉज आपको पता है जो फ्रंटल लोब होता है दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग एट द एज ऑफ 12 एंड जो टीनेज टैंट्रम्स जिसको कहते हैं वो उसी वजह से होते हैं बिकॉज द किड गेट्स कंफ्यूज्ड कि भाई एक नया पार्ट डेवलप हो रहा है दिमाग के अंदर हाउ लाइक इस वजह से वो सारी कंफ्यूजन शुरू होती है बच्चे के अंदर तो व्हाट वुड बी लाइक हाउ डू यू डील विद दैट कि यार उन जो वो जो बच्चियां हैं वो अपने ओवरऑल से मैं इस्लाम के हिसाब से बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज विद इस्लाम बिकॉज दुनिया चलेगी तो इस्लाम के साथ चलेगी सो वो हाउ डू यू डील विद दैट लाइक हाउ व्हाट वुड यू सजेस्ट कि व्हाट डू दे डू तो पहली बात यह है कि हमें जो ब्रेन डेवलपमेंट की समझ ही नहीं है हमारे कम्युनिटी में हम आराम से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का नाम ले लेते हैं लेकिन जो दूसरे ब्रेन के सेक्शन होते हैं लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट बिल्ड्स डिजायर्स इज बिल्ट फर्स्ट So the emotional brain, the desire part of the brain is actually something that goes first whilst your prefrontal cortex follows later for you to be able to make some kind of sound and balanced decisions in your life. तो हम इस चीज से बहुत डरते हैं कि हमारे बच्चों को डिजायर्स है हाय अल्लाह क्या करेंगे हम इनको कमरे में बंद करके ना जब वो 20 के हो जाएंगे बाहर निकाल के शादी करा देंगे We do not have an intelligent and realistic approach to understanding this. Now, from my research, I've understood that in the golden age of Islam, talking about desires, intimacy, and intimate relations was actually a very open topic, very openly discussed. And what we need to understand about our children that are growing within this age and entering teen years is that the developmental part of their brain for desires is overtaking them. By the time they are 15, their desires are at peak level, but their decision-making ability is here.
So what does that mean? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पेरेंट्स होते हुए क्यों इस पोजीशन में डाला हुआ है? क्योंकि हमारा काम है कि हम उनको समझाएं कि बेटा, now this is a phase in your life where you are going to be thinking and feeling certain things, and I am going to be that open space for you to discuss those things. लेकिन हम इस हेल्थी मुकाम पे पहुंचे ही नहीं है क्योंकि माँ बाप खिचपिच कर रहे हैं. So when the parents are not in a good union, the children are picking up subconscious elements of the reality and what it means to be a wife and a husband. You are showing them the normality of life when you do this. And this is one reality I've realized a lot of my clients, they don't understand it. That you are physically showing them what is acceptable. क्योंकि ज्यादातर औरतें मुझे कहती हैं, नहीं नहीं मुझे इतने दुख दर्द में देख के मेरा बच्चा सेम क्यों करेगा? क्योंकि आपको फंडामेंटली समझ ही नहीं है कि बच्चा क्या होता है. बच्चा एक ब्लैंक कैनवस होता है, आप उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हो. आपने पेंटिंग की कोई एक लेसन भी नहीं ली तो वो कैसे पिक्चर होगी? It's going to be horrendous, right? It's going to be colors all over the place, nothing in the right order. And then that child is left with the burden in their adult years to clean this picture that you made. So it's very important to realize that the decisions you make as parents has a direct effect on the decision making of your children. Secondly, if you do not have Islamic knowledge and you do not have knowledge of the basic psychology of raising a child, you are not going to be able to provide them with the correct information that they can navigate this world. In turn, you are letting your children down. And then in turn, you are letting the whole ummah down. Because you are putting mentally challenged or mentally disrupted and traumatized adults, releasing them into this world. And they are reproducing more of the same. तो इस बात से जो मैं आपकी समझा हूँ वो ये है कि बच्चा जो होगा टीनेज में वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा. अगर वो जो कुछ उससे पहले वाली यानी कि 12 साल 13 साल की एज से पहले जो कुछ उसने ऑब्जर्व किया है उसकी बेस पे वो आपको रेट करेगा कि भाई इन साहब की या इन साहिबा की मैंने बात सुननी है या नहीं सुननी है. राइट, प्रीटी मच. बिल्कुल जो कि उनके बिल्कुल. पेरेंट्स हैं. So that's consciously, right? That's the conscious thing that I don't respect the decisions you make, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी? लेकिन जो सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, आप बच्चे के स्टैंडर्ड सबकॉन्शियसली आप उनको बता रहे हो कि मार पीट करना, लड़ाई झगड़ा करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्यार मोहब्बत ना होना, अफेक्शन ना होना, ये सब चीजें नॉर्मल है. And these are a lot of the things even I used to say when I was younger. I was married throughout my whole of my 20s, and my ex-husband is now passed away. Allah उनको जन्नत नसीब करे. और जब हमारे मुश्किलात शुरू हो गए, मेरी लाइन यही थी कि शादी यही होती है, यही तो मैंने देखा है. खुश होने शादी में कोई खुश नहीं होता. So on one side, you're losing the respect of your children. On the other side, you are subconsciously setting them up to repeat the same cycle as you and your husband, potentially. So, अब इसके अंदर जो अब तो देखें ना, हम जो मिलेनियल्स हैं या जो इवन जो अर्ली जेनजीज हैं वो तो अब एक इस सारे स्टेज से निकल चुके हैं, राइट? उनके लिए वो वुड यू सजेस्ट? अगेन मैं ज्यादा फोकस्ड उन बच्चियों, बिकॉज लाइक यू सेड दे आर द पिलर्स, दे आर द बेस, लाइक द बेसिक ऑफ हाउस होल्ड, जो फाउंडेशन होती है हाउस होल्ड की. तो इस वजह से मेरा ज्यादा फोकस उनके ऊपर है कि व्हाट डू दे डू, लाइक जो स्पेशली द मिलेनियल्स. मैंने ये देखा है मिलेनियल्स तो बेचारे तबाह है. Yeah, I'm also a millennial, so I understand that. And that is true. And the only thing I can really urge people to do is two things. One is go and find some form of Islamic therapy. Very important. And I say Islamic therapy because the concepts of how we think compared to westernized academic therapy is completely different. We have a different angle. We have a community angle and a wholesome involved angle of everyone in our immediate circle. And secondly is strive to obtain your own Islamic knowledge, guys.
And as you already know, Basit, I'm a part of IMS. Now, Islamic messaging system is a constant reinforcement on the seerah of our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And the reason there is so much emphasis on it is because the seerah is the practical implementation of the Quran Majid. And every single scenario is covered in there. Separations of families, adoptions, divorce, money issues, political issues. Everything is covered within our deen. So get yourself some knowledge and go and search from some Islamic based therapy, because there's a lot of trauma that lives in our household. And हमने उस trauma को unpack नहीं किया, उस चीज को ना समझी और आगे बढ़े, तो it's gonna cause even more disruption, because वहां से फिर rebels हम बन जाते हैं. तो ज़रूरी है कि we put these two pillars in place. So one, you are healing, and two, you are receiving the correct information to channel your healing into. And then the result of that is that you start evolving as a person and as a mu'min. अच्छा फातिमा, आई डोंट नो अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं की है, लेकिन ओवरवेलमिंगली मैंने लोगों का सुना है, जैसे मैंने कहा खास तौर पे मिलेनियल्स एंड अर्ली जेनजीज जो हैं, अपने टीनेज के अंदर 20s 25 तक तकरीबन दे आर कंप्लीटली रेबल्स, राइट? दे एक्ट लाइक रेबल्स एंड दे जस्ट दीन से बिल्कुल दूर रहते हैं, हर चीज़ एवरीथिंग. और फिर दे जब अपने 30s में आते हैं, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अगेन कि यार अच्छा लेट मी. आपको लगता है कि जो हमारे जो यानी कि जो मिलेनियल्स और जेनजीज के जो पेरेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ यानी कि बीज डाल चुके होते हैं which kicks back in at the age of 30 or so? ऐसा do you think that that's the case? I would love to be that positive about it. I really would. लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज हमारी फितरा में डाली हुई है पहले से. Okay, so the seed is planted by Allah the day that the life is blown into us, the day the soul is blown into us. And I think what happens is, when you don't live your life on deen and you live for this dunya, everything seems really fun. It's really great. You're doing anything and everything you want whenever you want to do it. लेकिन हमें ये बाद में उसका जो trauma होता है, उन चीजों की जो consequences होती हैं, when those things start hitting us, फिर हमें समझ आती है कि यार इसमें सुकून भी नहीं है, इसमें इज्जत भी नहीं है, or there's no love and contentment here either. And those are the three things we are searching when we rebel. हम इसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, किसी contentment को. तो हम डोपामिन के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि किसी ने हमें सिखाया ही नहीं कि सेरोटोनिन is the queen hormone. When you have meaning, when you have sustenance, when you have goals in your life. So I personally think that the people that end up coming back is because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show them the world of experiences, so they knew the value of this deen. Without seeing the dark side, you will never know how bright the light really is. That's very well put actually. Yeah, I think ये बहुत सारे लोगों का ये है, and they start putting it to like, yeah, हमारी training kicks in and maybe they're trying to, you know, थोड़ा बहुत credit देना चाह रहे होते हैं अपने parents को. But you're right कि एक फितरा भी एक चीज़ है, असल जो चीज़ है, ये सब चीज़ें वहाँ से kick in हो रही होती हैं when you're maturing actually. जब 30 के पास पहुँचते हैं और आप mature हो रहे होते हैं. अच्छा, ये जो अभी आपने कहा है ना क्रेडिट के बारे में, मैं इस चीज को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहती हूँ. No, absolutely. Go ahead. हमारे कल्चर में बहुत, we're very emotional culture. Okay, so we like to give credit to ourselves and our parents and make sure the whole society knows हम कितने अच्छे हैं. The credit only and solely belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. उन्होंने किसी को हिदायत देनी हो ना, वो ऐसे हो जाता है. ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को ना, हम अपनी वोकैबुलरी में इसको नॉर्मलाइज करें. That we stop giving ourselves credit. This is not the mindset of a mu'min. Everything that happens to us
is for us by Allah subhanahu wa ta'ala, the good, the bad, and the ugly. So I'm not saying our parents deserve no credit. Alhamdulillah, of course, हमें बताया गया हम अपने parents के साथ कैसे treatment उनकी करें, of course. But the credit element, we need to stop giving ourselves credit. That is not how a Muslim works. अच्छा फातिमा, अब मैं जो है ना लेट्स मूव टुवर्ड्स आपका जो आपकी एक कॉर्पोरेट लाइफ भी है, you're in माशाल्लाह इन अ वेरी सीनियर पोजीशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, उसको थोड़ा सा आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंसेस कि आपने उसको किस तरीके से अपने दीन को साथ रखते हुए अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, और आप यूके में हैं, सो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीटली वेस्टर्न कल्चर, और जो भी मतलब ज़ाहिर है तो हाउ आप वो पूरा एक्सपीरियंस जरा मुझे शेयर करें मेरे साथ कि आप किस तरीके से हाउ डिड यू डू दैट, लाइक हाउ डिड यू कम थ्रू ऑल द चैलेंजेस? Yeah, तो आपने पहले भी challenges के बारे में बात की थी, and this thing really highlighted to me because it was easily one of the most difficult parts of my transition. Now, the environment that I work in, I believe I saw a statistic the other day that it's over 86% of the people that work in the senior civil engineering construction side of corporate world in the UK are middle-aged white men. So I was already a very unique individual that stood out. And then when I decided कि मैंने दीन की तरफ आना है, I completely changed my look. I started wearing headscarf, मेरे सारे कपड़े मेरे completely modest, you could not see me at all whatsoever. And I think that transition was something that was a really, really big test for me. क्योंकि पहले 2-3 साल लोग मुझे बहुत ostracize कर रहे थे, अजीब तरीके से मेरे साथ उनका communication था कि इसके साथ अब बात कैसे करें? उन्होंने सोचा था कि my hijab takes away my personality. And this is not the case at all whatsoever. I'm still Fatma underneath this. The only thing is I'm privatizing my sexuality. I'm privatizing my body. And when you live in a Western world and you privatize your body, they're like, हैं? तो फिर तुम क्या करोगी फिर? औरत तो यही होती है. औरत सिर्फ वो जो उसकी attraction होती है, that's her whole entire meaning. तो people started feeling sorry for me. मुझे पूछने लगे कि किसी ने तुम्हें कहा था कि ऐसे करो, वैसे करो. And it took them approximately 3 years to try and understand me. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, one of my directors, and I'm still very close with him now, he helps me with my career mentoring. And he said to me only a few months ago, कि क्योंकि तुमने हिजाब पहना है, मैं सारी दूसरी हिजाबी औरतों को एक दूसरे एंगल से देखता हूं. Or I have more respect for them now. I realize that they are not oppressed individuals, that they chose themselves to guard their body for divine wisdom. फातिमा थोड़ा सा And what I will say to sorry to cut you off on this, थोड़ा सा आप अगर ये जो आपने डील किस तरीके से, बिकॉज जो सुनने वाले हैं they would want to know कि भाई ठीक है that was a challenge, but how did you deal with it, like थोड़ी बहुत conversations, थोड़ा अगर if you can share briefly कि कोई ऐसी conversations हो जो आपके दिमाग में हो. तो हमने पहले भी बात की थी सब्र के बारे में. Okay, so this is what I had to implement. मुझे इस चीज को मैंने acknowledgement देनी थी कि they knew me in one way for 10 years. उन्होंने 10 साल के लिए एक version of फातिमा को experience किया था. तो when you're dealing with this change, अपने दूसरे लोगों को भी acknowledge करना है कि उनके लिए भी कितना बड़ा change है. ऊपर से वो दीन वाले नहीं है. तो it's a responsibility that I had to take on, that I had to learn to articulate the reasons I'm doing it correctly. And I had to have the correct Islamic knowledge to give that information correctly. और वो भी सब्र से और आराम से, अपना इखलाक नहीं छोड़ना. क्योंकि what happens is we start feeling really like our ego gets in the way, like, oh my God, they're keeping an eye on me or they're judging me. और वो क्यों मुझे पूछ रहे हैं? उनका क्या हक बनता है वो मुझसे पूछे? लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो,
अल्लाह मियाँ ने आपको एक और काम भी दिया है कि आप इस चीज को आर्टिकुलेटली और आराम से सुकून से लोगों को समझाएं. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट द स्टार्ट, क्योंकि मैंने हिजाब पहन लिया लेकिन मेरी इस्लामिक नॉलेज जीरो. तो मुझे उसको साथ साथ चलना पड़ा कि अच्छा, लोग मुझे ये पूछ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि मैं इन चीजों में इनका जवाब मेरे पास होना चाहिए. और जवाब कैसे आएगा? I had to teach myself. I had to discover multiple tafsirs. I had to read hadith myself, authentic hadith. I also went on to read other Islamic scholars like Imam al-Ghazali, for example, to understand the wider spectrum so I could communicate that to the non-Muslims properly. And I truly see that as one of our responsibilities as Muslims. So I really hope a lot of us can take this on. Don't be insecure. Don't feel like, oh, log mujhe pooch rahe hain aur mujhe dekh rahe hain. Of course dekh rahe hain. Itna bada change jo aaya unke सामने. ये एक ह्यूमन नेचर है, तो आपको भी सब्र करना पड़ेगा. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए bring out yourself and throw yourselves into the depths of knowledge, कि आप फिर क़यामत के दिन आप जब अल्लाह मियां आपसे पूछे कि क्यों ऐसे किया था, आप कह सकते हैं that I did it from the cleanliness of my heart and to ensure that people view Muslims in the correct way, especially because we've been exposed to so much propaganda and negativity. So we are messengers in our own way. Yeah, absolutely. दावा is the key. एक दो कोई एग्जांपल्स है आपके दिमाग में भी, जस्ट एट द टॉप ऑफ योर हेड, कि कोई ऐसी टफ कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ हुई हो, कोई एक दो एग्जांपल्स जस्ट सो लोग थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें कि हाउ टू हैंडल सिचुएशंस लाइक दिस. Okay. So I think one that always comes to my mind is when one of my directors said to me कि तुमने तो अपनी सारी खूबसूरती बर्बाद कर दी. Now, एक औरत के लिए this is a very big thing. Okay, हमें पता है कि हम अपनी खूबसूरती पे वेल डाल रहे हैं, ठीक है, वो हम पर्दा डाल रहे हैं. But when somebody on the outside tells you basically you are not beautiful anymore. You used to be so beautiful and now you're ugly. Now you look oppressed. And I had to emotionally manage that because my own fitra as a woman was thinking, oh, hi Allah, main kya karungi, koi mere saath, no one's going to marry me, I'm ugly now, etc., etc. And I had to deep dive, like I said before, about the education and explain to them about the privatization of a woman's body. Because essentially in the Western world, the psychology is, if you are not attractive to men, you have no relevance. Yep. That is what they truly believe. And when you challenge those dynamics, they even start thinking about it. And what I did with that particular boss is I brought his daughter as an example. And I said, when your daughter goes out and she dresses in a certain way and she runs out of the door so you don't see it, in your heart, deep down inside, are you feeling good about that or are you worried about her? And you see the impression on their face, like, hold on a minute, whoa, what? And I'm like, yeah, you would naturally be concerned for her, right? And they were like, well, I want her to be free. I'm like, that's fine. She can have her freedom, but is she safe? And you start challenging their dynamics in their own mind, but politely and respectfully. Because that's the one thing about being a Muslim, right? You have to be able to have a debate with someone you disagree with in a polite manner. Right. And when you can do this, वो सिर्फ तभी हो सकता है, सॉरी, कि जब आपको खुद को नॉलेज हो, खुद आपको कुछ पता हो. जी बिल्कुल बिल्कुल. और इसलिए मैं इस बार में बात एम्फसाइज करती हूँ. I go on and on about this because otherwise women are going to get caught in traps. If you don't have this knowledge and you haven't done the research, आपने क्या जवाब देना किसी को? आपने यही सोच रहे ना कि हाय सब लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी अगली हूं, बस, और आपका मेन डायनामिक ये बन गया क्योंकि आपको ट्रू मीनिंग का नहीं पता होता. So you can't have your self-esteem drops. But when you know the true meaning behind the actions you're taking, you are unstoppable human being. Right. अच्छा फातिमा, आपसे बात करते हुए, सिंस आई नो कि आपके
you deal with a lot of people, जो आपने पर्सनल डेवलपमेंट वाले साइड पे आपने मेंशन किया, तो कुछ ऐसे कंसर्न जो मेरी नज़र से गुजरते हैं या जो मैं सुनता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू पुट देम आउट देयर, लाइक आई जस्ट पुट आउट द क्वेश्चंस, तो आप मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाओ ताकि जो लोग सुन रहे हैं दे कैन गेट सम थोड़ी सी लाइट इसके ऊपर लोगों को मिले। एक जो मिसकंसेप्शन है दीन के अंदर ख़वातीन को लेके, जो सेक्स रिलेटेड है कि जी आप ना नहीं कर सकते, और आदमी को ऑल द डिटेल्स, जो चीज़ें हैं कि सेक्स को जिस तरीके से आई गेस अजीब, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस पुट किया हुआ है। तो हाउ डू यू डील, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स आते होंगे खवातीन के कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब हाउ टू डील विद दिस। तो आप किस तरीके से, मतलब व्हाट आर द कंसर्न्स, पहली बात तो ये, हाउ डू यू लाइक डील विद दैट? तो पहली बात ये है कि जो आपने पहले ये रेफरेंस किया, ये हदीस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कि जो औरत अपने आदमी को रिफ्यूज करे इंटीमेसी के लिए वो जहन्नमी है। नाउ what's important when we're reading hadith guys is that उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। और ये पाकिस्तानीज स्पेशली इसके अंदर पता नहीं क्यों इनके पास पीएचडी होनी चाहिए मैनिपुलेशन की, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझते और उस चीज को वेपनाइज करके हम औरत को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मर्द अपने आप में सिक्योर होता है वो कभी औरत के ऊपर इस तरह स्टेप नहीं करता, उसकी खुद सेल्फ एस्टीम वो ब्रोकन हुई होती है। So I come across this hadith a lot. Now, the context around this hadith is specifically for women that withhold intimacy as a form of manipulation and punishment for her husband. Now, there are hundreds of other reasons why you could not do it. It could be ill health. It could be because you recently had an argument and you are simply just not in the mood. You are physically unable. You are tired. It's too late. It's salah time. There's so many other reasons, but this is specifically around the manipulation of women. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये acknowledge करते हैं कि औरत के अंदर manipulation tendencies होती हैं. So this is to warn us against using that as a weapon. Oh wow, ये तो मेरे लिए भी नई बात है। Okay. Okay. So yeah, see, this is, and I come across a lot of women that they come to me with many hadiths, many scriptures, and they say that हमें ये बताया गया, हमें वो बताया गया. लेकिन you know, as Muslims, we overcomplicate things because our fitra knows what's right and what's just. Even the people that are doing the oppression, even they know that they are wrong. और हम अपनी अंदर की आवाज को नहीं सुनते, हम अपनी जो अल्लाह मियां ने हमारे अंदर ये आवाज डाली है, we don't listen to it, and हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। नहीं, ये मैनिपुलेशन वाली बात ये मेरे लिए नहीं है। आई हैवंट, मतलब ये सही कह रही हैं आप क्या, दैट इज उस चीज से रोका गया है बेसिकली, अल्लाह ताला ने उस चीज से रोका है कि मेक्स कंप्लीट सेंस। बिल्कुल जी। मैंने एक ये बड़ा, अभी आपने हदीस वाली बात की, आपको पता है जब मैंने बताया ना मैं 30 में सब कुछ अनलर्न किया फिर रीलर्न किया, तो एक हदीस बचपन से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट हर बच्चे ने सुनी हुई होगी कि जी अपनी माँ को उफ ना करो, राइट, माँ बाप को उफ ना करो। जब मैं 30 के बाद रीलर्न करना शुरू किया तो उसका अगला वाला पार्ट मेरे सामने आया। अगला पार्ट ये था कि माँ का सबसे ज्यादा हक है तुम्हारे ऊपर। हमें तो यहाँ तक बताया ना, माँ को उफ ना करो, उसका सबसे ज्यादा हक है, बस यहाँ तक बताई जाती है बात। पता ये चला कि इखलाक के मामले में ठीक है, हमारे यहाँ जो है उसको ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारा पैसा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा हर चीज का हक माँ का है, बताया ये जाता है वहां पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बीवी का रोल है, ये तो मैं जस्ट एन एग्जांपल, आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट देयर कि एक नई चीज मेरे लिए थी, जिस तरह भी आपने मैनिपुलेशन वाली बात बताई। बीवी का जो रोल है इस्लाम के अंदर, हाउ डू यू सी दैट के वो जो भी आपने अभी तक लर्न किया, हाउ डू यू सी दैट जो एक वाइफ का रोल होता है फैमिली के अंदर? Okay, so let's break this down a little bit.
that hadith is correct. The way that we are told to deal with our parents is very specific. वो गलत काम भी कर रहे हो ना, हमारा काम है हम उनको आराम से बताएं. तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, ठीक है. लेकिन जहां पे बात आती है कि they are gonna go against the word of Allah, that's when we have to put our foot down. लेकिन वो भी हमने प्यार से मोहब्बत से चीज कम्युनिकेट करनी, अखलाक के साथ, ठीक है. तो ये बात जब आपने अखलाक के साथ, जी, तो जब आपने कहा था कि माँ खुद कहती है, पाकिस्तानी माँ, कि मेरे पाँव के नीचे जन्नत है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह. We don't have the basic, understanding on ये चीज, इसको वेपनाइज करना कितनी बुरी बात है. क्योंकि आपने अपने बेटे को पूरी जिंदगी ये नैरेटिव बताया हो, तो जब वो शादी कर लेता है, उसको खुद नहीं पता होता कि वो बैलेंस कैसे करे अपनी बीवी को और अपनी माँ को. तो वो हमेशा अपनी माँ को प्रायोरिटाइज करता रहता है, बीवी को नेग्लेक्ट करता रहता है. The fundamental principle in our deen is that as a man, firstly, you need to be man enough to handle these two relationships. आपकी बीवी आपकी सेपरेट फैमिली बन जाती है, लेकिन आपने फिर भी अपनी माँ का ख्याल रखना है. लेकिन आपकी बीवी आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. So we don't know how to handle this. लेकिन जो एक अच्छी औरत होती है ना, अच्छी औरत, वो कभी अपने मियाँ को इस सिचुएशन में नहीं डालेगी where he has to choose between the mother and him unless the mother is unjust. लेकिन लड़के को पता होना चाहिए ना कि मेरी माँ ये इस्लाम के खिलाफ जा रही है, मेरा काम है मैं उनको बताऊं. लेकिन हमारे मर्द मैस्कुलिन नहीं है, बहुत फेमिनाइज हो चुके हैं. वो 40-year-old के काके ब्रेस्ट फीडिंग अभी तक कर रहे होते हैं और उन्होंने कहा नहीं मैंने दूसरी भी शादी करनी है. उनको तो एक मदर रिलेशनशिप और एक बीवी का रिलेशनशिप हैंडल नहीं करना आता. तो एक औरत का काम होता है कि वो अपने मियाँ को हेल्प करे, अपने शोहर को असिस्ट करे. So first thing is first, आप इस situation में हो जहां पे he doesn't know how to manage his mother and him, then you as a Muslim woman, as a Muslim wife should have enough knowledge about our deen to explain to your husband कि मेरे ये rights हैं, आपकी अम्मी के ये rights हैं. आप इन दोनों चीजों को balance करो, क्योंकि आपने भी अल्लाह को एक दिन जवाब देना है. लेकिन We are in such a selfish community. हर बंदा अपने आप के बारे में सोचता रहता है कि हम आखिरत को भूल जाते हैं. अल्लाह मियाँ को जवाब देना है आप सबने. और यहाँ पे जो समझ ले कि उसको evil बनाया जाता है, वो ये है कि जी बीवी के हिसाब से माँ evil है, माँ के हिसाब से बीवी evil है. Like you said कि आखिरत की तो फिक्र ये दोनों खवातीन जो कर रही हैं आपके साथ, वो दोनों अपनी आखिरत खराब कर रही है. They don't realize that, right? बिल्कुल बिल्कुल. और जब आपने पहले भी मुझसे पूछा था कि what issues do you face, the mother-in-law is a daily issue. I deal with it every single day. The mother-in-law, the mother-in-law, the mother-in-law. क्योंकि जो बीवी होती है, जो औरत होती है ना, उसको खुद नहीं पता वो कैसे अपने आप को हैंडल करे, वो दूसरे लोगों को क्या हैंडल करेगी. तो वो खिचपिच में पड़ जाते हैं, वो दुनिया की लड़ाइयों में गुम हो जाते हैं. लेकिन जो सही मुसलमान होती है, she rises above these kind of situations. जितनी भी बुरी हो तुम्हारी मदर इन लॉ, जो मुकमिना होती है ना, वो उस औरत के साथ डील करने में 10-10 होती है. उसको पता होता है मैंने कैसे बात करनी है, कैसे क्या क्या करना है. ये जो अनएजुकेटेड जाहिलियत में आके वो लड़ते हैं आपस में. राइट. और वही अगेन इट गोज बैक टू कि भाई अगर आखिरत की फिक्र रहेगी और दीन का इल्म होगा, तो आप एट ऑल टाइम्स आप इस फिक्र में रहते हो कि यार मैं किसी का हक ना मार दूं, मैं किसी का ज्यादती ना कर दूं. इसका तो सवाल होगा अगर मैंने किसी का ज्यादती कर दी. सो दे डोंट, अगेन ये इट ऑल गोज बैक टू द जो हमने जहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की थी कि जो खवातीन हैं उनको वो एक तो पिलर है, बिल्कुल बेसिक आपकी फाउंडेशन है आपके हाउस होल्ड की, और अगर वही मेस्ड अप होंगी तो दीज ऑल ऑफ दिस कम्स आउट ऑफ दैट फाउंडेशन. बिल्कुल. और ये जो लफ्ज आपने यूज किए हैं, इनके डेफिनेशंस हमें सही तरह से नहीं पता. हक क्या होते हैं, किसके क्या हक होते हैं, जो हमने मुंह बताया हुआ है. कोई माँ ने खुद कह दिया है
कि मेरे पाँव के नीचे जन्नत है, हम उसको बस मान लेते हैं, लेकिन आपने खुद भी आपने कहा है कि when we talk about the context and what's around it, and किस तरह का इंसान, आप ये भी सोचें, what kind of mentality does this woman have that she needs to tell you that jannat is under my feet? This is a psychological issue. This is a problem. This is coercive control. This is religious weaponizing. And why do women do it? क्योंकि जो oppressed woman होती है ना, जो अपने हक के लिए खड़े नहीं होती, जो सही बात के लिए खड़े नहीं होती, वो rebellion और फिर malicious behavior में चली जाती है. This is why it's so important that women stand up for what's right. Because एक औरत की nature ही ऐसी होती है, वो scheming हो जाती है, games खेलने लगती है, क्योंकि उसको यही रास्ता नजर आता है to receive what she needs to get, which is respect and love. And this is why I said earlier about women, please qualify your husbands. बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि how your husband operates, उसका पूरा, उसका दीन, मतलब उसका system, सोचने का, उठने बैठने का, how he deals with his mother, how he deals with his father, अपने finances को कैसे manage करता है. पहले आप ये चीजें qualify करो कि आपके शादी के अंदर इस तरह की problems ना हो. फातिमा, अभी एक्चुअली अभी भी मेरे पास हैं बहुत कुछ सवालात जो मुझे मजीद ये डिस्कशन लेके चलनी, बट आई नो आपकी तरफ अफ्तारी का टाइम हो चुका है, राइट? तो आई लेट यू रन, आई लेट यू रन एट दिस पॉइंट. हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट उसके अंदर. Yes, inshallah. I think it took us a while to warm up, but now we're quite warm. Now we can get, now we can get to the meat of it. Inshallah. So Inshallah. Alhamdulillah. Thank you so much for your time today, Basit. No, absolutely. Thank you so much, Fatma. And we will continue this discussion and this discourse, and I hope this helps a lot of people who are listening to this. हमने कोशिश की अंग्रेजी उर्दू मिक्स रखने की ताकि सबको बात समझ आ सके. Thank you so much, Fatma. Inshallah, we will set up another time और हम इसको आगे, इस बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. Inshallah. Okay. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Jazakallah. Assalamu alaikum.